द फन दे हैड चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये वीडियो। फोर्थ पैराग्राफ तक हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। फिफ्थ पैराग्राफ से शुरू करते हैं। The inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level." Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Maggie's head again. Maggie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तो इंस्पेक्टर मुस्कुराता है जब उसने अपना काम पूरा कर लिया यानी जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसको उसने रिपेयर कर लिया तो मुस्कुराया। एंड पैटेड मैगीज हेड, मैगी के सिर को थपथपाया जैसे ऐसे प्यार से थपथपाते हैं। ही सेड टू हर मदर, और उनकी माँ से कहा, "इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट." ये छोटी बच्ची की कोई इसमें गलती नहीं, कोई दोष नहीं है। मिसेस जोन्स, "आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड लिटिल टू क्विक." मैं सोचता हूँ कि जो जियोग्राफी का सेक्टर था इस टीचर के अंदर जो फीड किया गया था, टीचर मैकेनिकल था, कंप्यूटराइज टीचर था, तो वो जियोग्राफी का जो पार्ट था वो काफ़ी तेज़ चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी बातें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। अब मैं 10 साल के लेवल पर इसको स्लो कर दिया हूँ कि 10 साल की उम्र के बच्चों का जो मानसिक विकास होता है उतने लेवल पर अब इसको मैंने सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और जो जितना प्रोग्रेस आपकी बच्ची का हुआ है अभी तक ये सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। एंड इट पैटेड मागीज हेड अगेन, और उसने मागी के हेड को फिर से थपथपाया। मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, और अब मागी बिल्कुल निराश हो गई। क्यों निराश हुई? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसको आशा ये थी कि ये पूरे का पूरा टीचर ही लेकर चले जाएंगे, हटा दिया जाएगा ये टीचर ही, ये जो मैकेनिकल टीचर इसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो चिड़ी हुई थी उससे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी का टीचर जो था हिस्ट्री वाला, उसमें काफ़ी चीज़ें मिट गई थी, बिल्कुल वो ब्लैंक हो गया था, तो उसको 1 महीने तक हटाया गया था, यानी 1 महीने वो जाके कहीं रिपेयर हुआ होगा वो टीचर। तो सो शी सेड टू टॉमी, और इसलिए उसने टॉमी से कहा, "Why would anyone write about school?" यार कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? अब उस लड़की की मनोदशा को समझो तुम लोग, कि वो लड़की जिसको स्कूल से चिढ़ है, अपने मैकेनिकल टीचर्स से चिढ़ है, तो उसको लगता है कि स्कूल तो बड़ी बोरिंग सी चीज़ है, बड़ी खराब सी चीज़ है, तो उसके बारे में कोई क्यों लिखेगा? Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago," he added loftily, pronouncing the word carefully. "Centuries ago." Maggie was hurt. "Well, I don't know what kind of school they had all that time ago." She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." "Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man." "A man? How could a man be a teacher?" "Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions." "A man isn't smart enough." "Sure he is. My father knows as much as my teacher." "He knows almost as much? I betcha." Maggie wasn't prepared to dispute that. She said, "I wouldn't want a strange man in my house to teach me." Tommy screamed with laughter. "You don't know much, Maggie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were same age. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book." "I didn't say I didn't like it," Maggie said quickly. She wanted to read about those funny schools. They weren't half finished when Maggie's mother called, "Maggie, school." Maggie looked up. "Not yet, Mama. Now," said Mrs. Jones
And it is probably time for Tommy too. Maggie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" तो ये 8th पैराग्राफ तक हो गया, हम यहाँ तक इस पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आईज। 6th पैराग्राफ। तो टॉमी अब मागी की ओर देख रहा है काफी सुपीरियर आईज, जैसे कि वो बड़ा था, उससे एक्सपीरियंस ज्यादा थी, तो उसको एकदम जैसे बड़े लोग देखते हैं वैसे बड़े लोगों की तरह देखा। तो उसने क्वेश्चन पूछा था कि क्यों स्कूल के बारे में कोई लिखेगा, मागी चिड़ी हुई थी, तो उसका बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। उसको मूर्ख करा मूर्ख, हमारे जैसा स्कूल थोड़े ही है कि उसके बारे में नहीं लिखा जा सकता, इतना बोरिंग स्कूल नहीं है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. तो कह रहा ये ऐसे स्कूल थे जो सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे, और फिर बड़ा जोर देके बहुत जैसे गंभीर बात, बड़ी बात कह रहा है, ऐसे कह रहा सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले की बात है। शताब्दियों पहले ऐसे स्कूल होते थे जहां जीवित टीचर पढ़ाते थे। मागी वॉज हर्ट। अब मागी को बुरा लगा, यार मुझको नॉलेज नहीं, मुझको स्टूपिड कह रहा है ये। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। कह रही कि मुझको तो नहीं पता कि भाई इतने समय पहले किस तरह का स्कूल क्या होता था। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल एंड देन एनीवे दे हैड अ टीचर। तो उसके कंधे, जैसे ये बैठ के मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पीछे से आई और यहाँ कंधे से बुक को देखा, थोड़ी देर पढ़ा और करिए अच्छा तो उनके भी टीचर थे। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. तो अब उत्तर देता है वो लड़का टॉमी कि हाँ बिल्कुल टीचर तो थे ही, और ये टीचर रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक आदमी थे। अब रेगुलर टीचर का मतलब समझो, ये जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, मैंने बताया कि लगभग 150-200 साल पहले आगे की बात हो रही है। तो रेगुलर टीचर उन्हें माना जाता था जो कंप्यूटराइज टीचर होते थे, जो तुम्हारे घरों में ला के मशीन आप रख लेते थे, वो पढ़ाते थे, तो उन्हीं को रेगुलर माना जा रहा था, उस माना जाएगा। तो उसी को रेगुलर में कह रहा है कि रेगुलर टीचर वो नहीं था, वो एक मैन था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब देखो मागी को कितना आश्चर्य होता है कि आदमी, एक मनुष्य कैसे टीचर हो सकता है भाई। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. बिल्कुल वो लड़के लड़कियों को चीजें बताता था, उनको होमवर्क देता था, क्वेश्चन पूछता था, ऐसे ही आदमी होते। A man isn't smart enough. तो मागी कहती कि नहीं आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना तेज नहीं हो सकता, इतना अच्छा नहीं हो सकता। Sure he is. My father knows as much as my teacher. तो टॉमी जवाब देता है कि नहीं आदमी भी स्मार्ट हो सकता है, तुम्हारे रेगुलर टीचर की तरह, तुम्हारे मैकेनिकल टीचर की तरह आदमी भी स्मार्ट हो सकता है। मेरे फादर ही हैं, उनको भी उतना पता है जितना हमारे टीचर को पता है। He knows almost as much, I betcha. क्या लगता है कि जितना इतना जानता है कोई आदमी, जितना मतलब मैकेनिकल टीचर या मशीन जानने लगे, क्या आदमी इतना जानता? आई बेट, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ। अब शर्त वाली बात आ गई। मागी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। अब मागी बिल्कुल तैयार नहीं थी इस मामले पे बहस करने के लिए आगे। शी सेड, उसने कहा, आई वोंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं तो नहीं चाहूंगी कि मेरे घर में कोई अजनबी आदमी आए, कोई नया आदमी आए, अनजान आदमी आए और पढ़ाए घर में, मैं तो ऐसा नहीं चाहूंगी। तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। तो वो बड़ी तेज चिल्ला के हंसा जोर से। यू डोंट नो मच मागी, तुम्हें अभी ज्यादा पता नहीं है। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, वो हमारे घरों में नहीं रहते थे। उस समय के टीचर्स, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और बच्चे वहां जाते थे, यानी स्कूल्स होते थे और वहां बच्चे जाते थे। टीचर्स बच्चों के घर में नहीं रहते थे जैसे अब मैकेनिकल टीचर रह रहे हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। फिर पूछती है कि क्या सारे बच्चे वही बिल्कुल एक ही चीज सीखते थे? श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ बिल्कुल अगर वो एक ही उम्र के हैं तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। तो बताती है मागी कि लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, हर बच्चे के दिमाग के हिसाब से फिट करना पड़ता है। मैकेनिकल टीचर है ना, तो उसमें सब कुछ सेट करना पड़ता है, कितनी उम्र है बच्चे का, क्या IQ है, क्या लेवल है, उस हिसाब से फीड किया जाता। तो वो इस हिसाब से टीचर पढ़ाता था मैकेनिकल टीचर। अभी ऊपर हमने देखा कि वो आया उसका इंस्पेक्टर, तो उसने सेट किया, उसको थोड़ा सा स्लो किया, तो ऐसी सेटिंग। तो करीब माँ तो कहती है ऐसा सब कुछ सेट किया जाता था कि हर लड़के लड़की के दिमाग को सूट कर सके और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ा सके, जिस बच्चे की जितनी आवश्यकता है।
जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो भाई यही चीज ये इस तरीके से तब नहीं होता था। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। और अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मागी सेड क्विकली। मागी ने जल्दी से कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी कि इस तरह के मजेदार स्कूल्स के बारे में जाने कि पहले कैसे जीवित टीचर पढ़ाते थे या क्या कैसे होता था। They weren't half finished when Maggie's mother called। और ये बातचीत अभी आधी भी खत्म नहीं हुई थी कि मागी के माँ की आवाज आई, मागी स्कूल, यानी मागी स्कूल का टाइम हो चुका है। मागी looked up, मागी ने देखा उधर। नॉट येट मामा, नहीं माँ अभी तो समय नहीं हुआ। नाउ सेड मिसेस जोन्स, और मिसेस जोन्स ने कहा अब, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये तो टाइम टॉमी के लिए भी हो ही गया है। मागी सेड टू टॉमी, और मागी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या स्कूल के बाद मैं ये तुम्हारे साथ ये जो बुक है थोड़ी सी और पढ़ लूँ क्या, उस समय के स्कूल के बारे में जो बुक उसके हाथ लगी थी पुरानी। यहाँ तक रखते हैं। कल 9th और 10th पैराग्राफ हम कंक्लूड करके एक बार ओवरऑल फिर से इस चैप्टर के बारे में कल नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझ लेंगे। तुम लोग रीडिंग थोड़ा सा कायदे से लगाना, 2 बार 4 बार वीडियोस देखो, खासतौर से यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, और थोड़ा सा इमेजिनेशन ज़्यादा लगाओ, कल्पना करो कि ये जो पाठ की बात हो रही है, जो लड़के लड़की या उसकी मम्मी हैं, ये आज से 150 सालों के बाद लगभग की बात हो रही है, जब सब कुछ मैकेनिकल हो चुका है, कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, उसमें कहीं ह्यूमंस के लिए जगह नहीं है, मनुष्यों का कोई काम नहीं है एज ए टीचर। तो उस हिसाब से पढ़ पाओगे तो इस चैप्टर से जुड़ पाओगे। धन्यवाद।